अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन है, इंडिपेंडेंटली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टू रिसर्च टीम्स। दो रिसर्च टीमों ने इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन को इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1954। टीम 1 consists of Andrew Huxley and Rolf Neidinger. They were from the University of Cambridge University. They were from the Cambridge University. And the other team, research team, consists of Hugh Huxley and his companion Janus Hansen. They were from the Massachusetts Institute of the Technology. This pair of research team, they independently introduced sliding filament theory in 1954. और जब हम ओरिजिनली हम इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को देखेंगे, who originally conceived this theory, then it comes the Hugh Huxley. He originally conceived sliding filament theory in 1953, right? This sliding filament theory, what about the sliding filament theory is, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या प्रोक्लेम करता है, what it proclaims, what it suggests. This sliding filament theory, this is the theory which explains the mechanical and the chemical basis of the muscular contraction. The chemical and the mechanical basis of the muscular contraction, यही chemical and the mechanical basis of muscular contraction इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया जाता है, राइट? और जो प्रोसेस ऑफ मसल कंट्रैक्शन, द मैकेनिज्म ऑफ द मसल कंट्रैक्शन, इस थ्योरी अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ये जो प्रोसेस है मस्कुलर कंट्रैक्शन की प्रोसेस जो है, ये मसल कैसे कंट्रैक्ट करती है, द प्रोसेस ऑफ द कंट्रैक्शन, इट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन, राइट? और उसके बाद जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ड्यूरिंग कंट्रैक्शन के दौरान, the sliding filament theory states that during contraction the actin filament, the thin filament, it slides over the myosin filament. ये myosin filament के ऊपर स्लाइड करता है, राइट? कंट्रैक्शन के दौरान, and as a result what happens there, the myofibril is shortened. There we see जो myofibrils हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, shortening of the myofibril. As a result what happens there, वहाँ myofibril शॉर्ट होता है. myofibril जो है ये क्या है? As we know that the muscle, this muscle, in this muscle we see there is the muscle cell. muscle में हम muscle cells पाए जाते हैं. muscle is made up of the muscle cells or the muscle fibers, और muscle fibers को myocytes भी बोलते हैं, right? और in these muscle cells or the muscle fibers there are the number of the myofibrils. इन्हीं muscle cells में, इन्हीं muscle fibers में, myocytes में myofibrils होते हैं, जो एक्चुअल में जो शॉर्टन होते हैं when during the contraction of the muscle. Sliding filament theory states that during the contraction of the muscle, actin filament slides over the myosin filament. As a result there happens the shortening of the myofibril, means they are happening the shortening of the muscle जो है वो shorten होता है, right? जो लेंथ है इन filaments की, actin and the myosin filament जो है, इनकी जो लेंथ है that does not change during the contraction, rather actin filament slides over the myosin filament. actin filament myosin filament पे overlap करता है. this actin filament past the myosin filament, ये इसके ऊपर ओवरलैप करता है, बट डज नॉट चेंज द लेंथ, इनकी लेंथ चेंज नहीं होती है. दिस इज द स्टेटमेंट विच इज प्रोक्लेम्ड इन
द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इस स्टेटमेंट को स्टेट करता है इन दिस थ्योरी, राइट। उसके बाद जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, देयर आर द वेरियस फेजेस ऑफ द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बहुत से फेजेस हैं, जिन फेजेस में हम मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल प्रोसेस जो इन्वॉल्व हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी विद रेस्पेक्ट टू द मस्कुलर कंट्रैक्शन, इनको इन बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड द मैकेनिकल बेसिस, इस प्रोसेस को हम फेजेस में देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू द मस्कुलर कंट्रैक्शन। लेकिन बिफोर वी go to that point, before we see this process, the mechanical process, biochemical process and the physiological process involved in the sliding filament theory with respect to the muscular contraction, before we go to that, before we touch this point, हमने पहले कुछ terms जानना है। हमने we must keep some terminologies used in the sliding filament theory। उस टर्मिनोलॉजी को हमने अच्छी तरह समझना है, माइंड में बिठा के रखना है उसको, उन टर्म्स को, उन की पॉइंट्स को, उन की वर्ड्स को हमने माइंड में बिठा के रखना है। वी मस्ट नो देम, हमने उनको जरूरी जानना है। विदाउट नोइंग देम हम आगे जाके उन मसल का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, बायोकेमिकल मैकेनिज्म and the mechanical mechanism जो मसल हैं with respect to the muscular contraction involved in the sliding filament theory, it is difficult to understand that जब तक ना हम उन टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, उन बेसिक्स को देखेंगे जो बेसिक्स इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिन बेसिक टर्मिनोलॉजीज का यूज किया गया है। तो सो फॉर दैट वी नो दैट जो सर्कोमियर है, वी नो द सर्कोमियर। What is sarcomere? Sarcomere is made up of the two contractile filaments। दो contractile filament से sarcomere बना हुआ होता है। एक तो इस sarcomere में एक तो actin filament होता है, दूसरा myosin filament होता है। These are the two proteins, जिन proteins का sarcomere बना हुआ होता है, right? ये जो sarcomere है, sarcomere it is the contractile unit in the skeletal muscle। skeletal muscle में contractile unit है, it is the functional and the contractile unit in skeletal muscle, right? और each muscle fiber में this, हर एक मसल फाइबर में we see there the alternate dark and the light bands। हम हर एक मसल में या सर्कोमियर में क्या देखते हैं? डार्क एंड लाइट बैंड्स लाइक दिस। सिट्रेशन देखते हैं ना हम, दिस इज द मसल, दिस इज द सर्कोमियर। ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है। दिस इज द मसल फाइबर। इस मसल फाइबर में सर्कोमियर होता है और हर एक ईच सर्कोमियर कंटेनर्स या ईच मसल फाइबर कंटेनर्स लाइट बैंड। दिस इज जो सिट्रेशन है ना, दारियां जैसी नजर आ रही है हमें, ये सिट्रेशन जो है ये लाइट बैंड है, दिस इज लाइट बैंड और दिस इज डार्क बैंड। ये सिट्रेशन हमें नजर आ रही है सर्कोमियर में। और इस सर्कोमियर में आई वॉन्ट मेक यू पीपुल टू अंडरस्टैंड कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का क्या कहना है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में व्हाट इट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ द मस्कुलर कंट्रैक्शन। उस मस्कुलर कंट्रैक्शन को समझाने के लिए मैं इस चीज को क्या टच कर रहा हूं, हमें इस चीज को जरूरी जानना है, सो दैट के हमें पूरा मैकेनिज्म ऑफ द मस्कुलर कंट्रैक्शन विद रेस्पेक्ट टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अच्छे से समझ आएगा। तो दैट इज व्हाई कि मैंने कहा ये सर्कोमियर है। सर्कोमियर में क्या है, या ईच मसल फाइबर या ईच सर्कोमियर में क्या है, लाइट एंड द डार्क बैंड्स। हर एक लाइट एंड डार्क बैंड्स, दिस लाइट एंड डार्क बैंड या इस सर्कोमियर में इट कंटेन्स द टू कंट्रैक्टाइल स्पेशल कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसमें दो स्पेशल किस्म के कंट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और उन स्पेशल कंट्रैक्टाइल प्रोटीन को क्या कहते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन ये दो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है
they are present in each muscle fiber, they are present in the sarcomere, and the sarcomere is made up of these contractile special contractile proteins, right? तो ये चीजें इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड द मायोसिन। अब हम देखेंगे ये एक्टिन है क्या और ये मायोसिन है क्या, बिकॉज कि जब हम फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म physiological mechanical mechanism and biochemical mechanism with respect to the muscular contraction involved in the sliding filament theory पढ़ेंगे, उन phases को उन phases में इन चीजों को देखेंगे, हमें वहां ये चीजें, ये टर्मिनोलॉजीज वहां देखने को मिलेंगे, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टोमायोसिन, ये चीजें देखने को मिलेंगे, बैंड्स, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगे। तो वहां हम कंफ्यूज हो जाएंगे जब तक ना हम इनको पहले ही समझेंगे, माइंड में बिठाएंगे, सो दैट उन फेजेस में हमें इजीली समझ आएगा ये एक्टिन क्या है, एक्टोमायोसिन क्या है, ये बैंड्स क्या है, ये लाइनस क्या है, ये जोनस क्या है, राइट? तो पहले इनको हमें समझना है। जो एक्टिन है, एक्टिन जो है, एक्टिन ये वो प्रोटीन है मसल्स में, ये वो प्रोटीन है जो प्रोटीन किस चीज का बना हुआ होता है, एक्टिन मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है। एक्टिन इज अ मायोफिलामेंट, दिस मायोफिलामेंट इज मेड ऑफ द एक्टिन मॉलिक्यूल। एक्टिन मॉलिक्यूल, इस एक्टिन में दो चीजें हैं, इन दो चीजों से बना हुआ होता है ये मायोफिलामेंट, एक है ट्रोपोनिन, दूसरा है ट्रोपोमायोसिन। एक है ट्रोपोनिन एक्टिन का, ट्रोपोनिन फर्स्ट है, दूसरा ट्रोपोमायोसिन। These are the two एक्टिन मॉलिक्यूल्स, जिन एक्टिन मॉलिक्यूल्स का ये एक्टिन मायोफिलामेंट बना हुआ होता है। और ये जो एक्टिन है, एक्टिन जो है, इसमें ये दो चीजें हैं। एक्टिन प्रेजेंट होता है लाइट बैंड में, एक्टिन इज प्रेजेंट इन द लाइट बैंड, इन ईच सर्कोमियर, इन ईच मसल फाइबर। वहां पे मसल फाइबर में, सर्कोमियर में अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। लाइट बैंड में एक्टिन मौजूद होता है। एक्टिन का दूसरा नाम थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। एक्टिन का दूसरा नाम, एक और नाम है, दैट इज द आई बैंड। एक्टिन को आई बैंड भी बोलते हैं, राइट? एक्टिन को आई बैंड भी बोलते हैं। और आई बैंड क्या है? आई बैंड इज द रीजन, दैट रीजन, ये वो एरिया है मसल्स में, ये वो एरिया है जिस एरिया में विच कंटेन्स ओनली द एक्टिन, विच कंटेन्स ओनली द थिन फिलामेंट। जिस एरिया में, जिस रीजन में सिर्फ थिन फिलामेंट नजर आएगा, सिर्फ एक्टिन फिलामेंट नजर आएगा, सिर्फ यही डार्क बैंड नजर, लाइट बैंड नजर आएगा। दैट बैंड इज कॉल्ड द आई बैंड। That is why actin is also called the light band. It is also called the eye band. It is also called the thin filament. It's also it contains the troponin and the tropomyosin. Right? ये actin है। इसके बाद second, इसके बाद second जो है, that is the myosin. Sorry, मायोसिन से पहले जो एक्टिन के दो पार्ट्स हैं, एक्टिन कंटेन्स द ट्रोपोनिन एंड द ट्रोपोमायोसिन। हियर आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स हैं। एक्टिन का जो ट्रोपोनिन है, इसके 3 सब यूनिट्स हैं। कौन कौन से 3 सब यूनिट्स हैं? ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। ये 3 सब यूनिट्स हैं। These 3 sub units we see, these are the sub units of the troponin. Troponin is the actin molecule of the actin, right? और इसके बाद जो है, that is a dark band. Dark band को क्या कहते हैं? मायोसिन। When it comes to the myosin, जब मायोसिन की बात आती है, जो मायोसिन है, here I want to add one more thing, that is the interesting thing. जो मायोसिन है, मायोसिन is the first protein. ये फर्स्ट प्रोटीन है
इन द मसल्स, जिसको फर्स्टली मसल्स में डिस्कवर किया गया है एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट ने, एक जर्मन साइंटिस्ट ने इस मायोसिन को, ये मसल में जो प्रोटीन है फर्स्टली मायोसिन को देखा गया है, डिस्कवर किया गया है इस मायोसिन को, राइट। और उसके बाद दो वाइफ एंड हस्बैंड, ये जो ये भी फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसको और फिर एक्सट्रैक्ट किया, फिर बताया कि एटी इस मायोसिन की एक प्रॉपर्टी है, इट हैज द एटीपी एंजाइम्स के, इट हैज द प्रॉपर्टी के ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है एटीपी को, ये एटीपी मायोसिन एटीपीज है इसमें, ये ब्रेक डाउन करता है एटीपी को, एडीपी वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें पहले हमने एक्टिन देखा, अब मायोसिन। मायोसिन जो है, मायोसिन इज अ डार्क बैंड, myosin is called a dark band, and myosin is also called thick filament. It is the thick filament, right? Are you getting me? This myosin, it is the dark band. This myosin is present in the dark band, and this myosin is also called the thick filament, right? इसको thick filament भी बोलते हैं। इस myosin को A band भी बोलते हैं, इसको ए बैंड भी बोलते हैं। एज आई हैव अर्ली टोल्ड टू यू दैट कि सर्कोमियर में, सर्कोमियर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट बैंड्स, डिफरेंट जोन्स, डिफरेंट लाइन्स एंड डिफरेंट बैंड्स। बैंड हमने पढ़ा, एक्टिन में एक बैंड पढ़ा, दैट इज द आई बैंड। आई बैंड वो रीजन है जिस रीजन में सिर्फ एक्टिन होता है। ए बैंड हमने देखा है, ए बैंड वो रीजन होता है, दिस रीजन कंटेन्स द मायोसिन, जिसमें मायोसिन होता है, लेकिन एक्टिन एट द आउटर एज, आउटर एज पे एक्टिन होता है। इस चीज को समझाने के लिए मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। उस डायग्राम के थ्रू इन बैंड्स, इन जोन्स, इन रीजन्स, इन लाइन्स को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो पहले हमने ये चीजें याद रखनी है, वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, राइट। इस मायोसिन को ए बैंड भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? ये चीजें किसमें होते हैं? सर्कोमियर में होते हैं। अब मैं डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। इस सर्कोमियर में कुछ जोन्स होते हैं, कुछ लाइन्स होते हैं, राइट। मैं सर्कोमियर बनाता हूं, इस सर्कोमियर में डिफरेंट थिंग्स होते हैं, जोन्स होते हैं, लाइन्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, ये भी चीजें होती है, एक्टिन और मायोसिन भी होता है इसमें। ये दो जो वर्टिकली मैं सर्कोमियर बना रहा हूं, ये दो चीजें जो मैंने वर्टिकली जो लाइन्स बनाई है, दीज वर्टिकली लाइन्स जो दे डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ द सर्कोमियर, सर्कोमियर दे डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ सर्कोमियर, सर्कोमियर की बाउंड्री को डिटरमाइन ये दो वर्टिकल लाइन्स डिटरमाइन करते हैं। तो इन बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं? इन these two vertically arranged lines they determine the boundaries of the sarcomere, these two lines are called z lines, इनको z lines बोलते हैं हम, राइट। इनको क्या बोलते हैं? z lines। ये z lines है, z lines are the vertically arranged lines within the sarcomere, they determine the boundaries of the sarcomere, and in between these two lines this is the elastic fiber, ये z lines जो है ये elastic fiber है। in between these two lines there we see the sarcomere, there we see the actin and the myosin, there we see the special kind of the proteins, actin and the myosin, thick and thin, light and dark band, A band and I band, right। तो ये चीजें हैं। इसके बाद ये है ये मैं सर्कोमियर बना रहा हूं, राइट।
देखिए ये वर्टिकली अरेंज्ड जेड लाइन्स है, ये सर्कुमियर में बना रहा हूं, ये रिलैक्सड मसल सर्कुमियर में बना रहा हूं, इसमें ये वाली जेड लाइन्स है। ये वाला जो है ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये थिन फिलामेंट है, राइट। और ये वाला जो है ये वाला ये मायोसिन है, थिक फिलामेंट है, राइट। और इस सर्कुमियर के बीच में ये वाली लाइन जो जा रही है, ये वाली लाइन जो जा रही है, इसको एम लाइन बोलते हैं, एम लाइन। As I have already told to you that sarcomere is divided into different lines, zones, bands, right? Zone अभी नहीं पढ़ा, अभी Z lines पढ़ा, Z lines के बाद हमने M lines पढ़ा। M line जो है it runs down the center of sarcomere, इस center of to which the myosin filament जो होता है वो बिंड्स होता है, इसके साथ मायोसिन फिलामेंट बिंड होता है, बॉन्ड होता है मायोसिन फिलामेंट का। ये वाला मायोसिन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द मायोसिन, ये वाला मायोसिन है, इसी के साथ मायोसिन अटैच है। दिस इज द लाइन, ये भी वर्टिकली लाइन है विच गोज डाउन, जो विच रन्स डाउन, जो डाउन रन करता है डाउन द सर्कुमियर एंड टू विच द मायोसिन बिंड्स, जिसके साथ मायोसिन बिंड होता है। दिस लाइन इज कॉल्ड द एम लाइन, इस लाइन को एम लाइन बोलते हैं, राइट। इसके बाद जो ये वाला रीजन जो है एम लाइन भी आया, अब एच जोन है, ये वो एच जोन है। अब एच जोन देखेंगे, एच जोन में ये वाला एच जोन है, ये वाला एच जोन है, दिस इज द एच जोन। एच जोन इट इज द जोन, इट इज द एरिया विच कंटेन्स ओनली थिक फिलामेंट, जिसमें खाली थिक फिलामेंट हम देखते हैं, जिसमें खाली हम मायोसिन फिलामेंट देखते हैं। देखो यहां ये वाली लाइन, ये वाली ये मायोसिन है ना, मायोसिन फिलामेंट है। इस एरिया, द एरिया विच कंटेन्स ओनली थिक फिलामेंट विच कंटेन्स ओनली द मायोसिन, दिस एरिया, दिस जोन, द जोन विच कंटेन्स द मायोसिन फिलामेंट, दैट जोन इज कॉल्ड द एच जोन। उस जोन को एच जोन बोलते हैं, राइट। अब ये वाला जोन जो है, ये वाला ये एरिया जो है, ये यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं आई बैंड। क्यों? एक्टिन, ये एक्टिन है, पहले ही लिखा है हमने ऊपर, ये एक्टिन है, ये वाला एक्टिन, ये वाले एक्टिन है, साइड वाले जो एक्टिन है ये दो, ये और ये एक्टिन है। इस जोन को, इस बैंड को आई बैंड बोलते हैं। आई बैंड, एक्टिन को आई बैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसको क्यों आई बैंड बोलते हैं? बिकॉज इट इज द एरिया, इट इज द रीजन विच कंटेन्स ओनली एक्टिव फिलामेंट, जिसके जहां पे जिस एरिया में खाली क्या होता है, एक्टिव फिलामेंट है, दैट इज बैंड इज कॉल्ड द आई बैंड। दिस एरिया इज कॉल्ड द आई बैंड, राइट। और ये वाला जो है, ये यहां से ये, यहां से यहां तक, इस जोन को क्या कहते हैं? ए बैंड। इस जोन को ए बैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ए बैंड इट इज द एरिया विच कंटेन्स थिक फिलामेंट, जिसमें मायोसिन होता है, और एट द आउटर देयर वी सी द आउटर एज पे एक्टिन फिलामेंट भी प्रेजेंट होता है। देखो ये मायोसिन है, देखो ये आउटर एज पे, यहाँ पे ये वाला एज देखो आप, ये वाला एज देखो, ये वाला एज देखो, ये वाला एज देखो, राइट। आर यू गेटिंग मी? इस ए बैंड में, पूरे ए बैंड में मायोसिन प्रेजेंट होता है, लेकिन एट द आउटर एज में एक्टिन फिलामेंट का एज भी प्रेजेंट होता है। दिस बैंड, दिस एरिया इज कॉल्ड द ए बैंड, इसको ए बैंड बोलते हैं, राइट। तो these bands, these zones, these lines, they are involved in the sliding filament theory with respect to the muscular contraction. That is why मैंने आपको इन चीजों से एक्सपोज किया, पहले ही एक्सपोज किया, बिकॉज ऑलरेडी हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे फेजेस में कि जहां हम देखेंगे मस्कुलर कंट्रैक्शन कैसी होती है अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो ये टर्मिनोलॉजी वहां पे यूज की गई हुई होती है।
तो दैट इज वाई मैंने इस चीज को डायग्राम के थ्रू पहले ही समझाने की कोशिश की है। जो कंट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग कंट्रैक्शन व्हाट हैपेंस देयर वी सी जो एच जोन होता है, कंट्रैक्शन के दौरान जो आई बैंड ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, जो आई बैंड राइट, जो आई बैंड राइट, कंट्रैक्शन के दौरान आई बैंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन्स, बिटवीन जेड लाइन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जेड लाइन्स वो लाइन्स हैं जो सर्कोमियर की बाउंड्री को डिटरमाइन करता है, जो वर्टिकली अरेंज्ड है, ये इलास्टिक फाइबर है। कंट्रैक्शन के दौरान आई बैंड्स और जो डिस्टेंस बिटवीन द जेड लाइन्स एंड एच जोन, और एच जोन कौन सा जोन है, जिस जोन में खाली क्या पाया जाता है, जिस एच जोन में खाली थिक फिलामेंट पाया जाता है, मायोसिन ही पाया जाता है राइट, और एच जोन बिकम स्मॉलर, ये स्मॉलर हो जाते हैं, ये शॉर्टन होते हैं। एंड ए बैंड, जो ए बैंड है यानी कि मायोसिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट जो है रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहते हैं कंट्रैक्शन के दौरान। मीन्स अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन द लेंथ ऑफ द एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट डज नॉट चेंज, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट की लेंथ चेंज नहीं होती है। जो ए आई बैंड है, आई बैंड शॉर्टन होता है राइट, एच जोन जो है, जिस जोन में मायोसिन फिलामेंट होता है वो डिसअपियर होने लगता है, आई जोन डिसअपियर्स एंड द लेंथ ऑफ द ए बैंड दैट इज द मायोसिन filament, that is a thick filament that we call the A band. The length of the A band it remains constant as its original length, जिसकी जो original length है वो constant रहती है, और I band and as I band shorten होता है और H zone जो वो disappear होता है right. According to this theory the length of the two contractile filaments does not change, rather actin filament slides over the myosin filament right. तो ये चीजें पहले जरूरी हमने समझनी थी। अब हम पॉइंट पे आ जाएंगे, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को 5 डिफरेंट फेजेस में इसको कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। इन 5 डिफरेंट फेजेस में वी विल सी द physiological mechanism of the muscular contraction, mechanical mechanism of the muscular contraction, and the biochemical mechanism of the muscular contraction involved in the sliding filament theory. इन 5 phases में इन इस mechanism को हम देखेंगे। ये कौन कौन से 5 phases हैं, जो 5 phases sliding filament theory में इन्वॉल्व किए गए, जिन 5 फेजेस में मैकेनिज्म, कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल मैकेनिज्म, मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ द मस्कुलर कंट्रैक्शन को इन्वॉल्व किया गया है। फर्स्ट फेज दैट इज द रेस्टिंग फेज, फर्स्ट फेज है उसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, एंड द सेकंड फेज दैट इज द कपलिंग फेज और द एक्साइटेशन फेज, एंड द थर्ड फेज दैट इज द कंट्रैक्शन फेज, एंड द फोर्थ फेज दैट इज द रिचार्जिंग फेज, एंड द फिफ्थ फेज एंड द लास्ट फेज दैट इज द रिलैक्सेशन फेज। So these are the phases. In these phases, we see the biochemical, physiological, and the mechanical process with respect to the muscular contraction involved in the sliding filament theory. We see in these all these things we see in these phases. And the first, now my point is the first phase, that is the resting phase. Resting phase में क्या होता है? रेस्टिंग फेज में जब मसल रेस्ट पे होती है, ड्यूरिंग रेस्ट व्हेन द मसल इज एट रेस्ट, जब मसल रेस्ट पे होती है, जो मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस होते हैं, जो मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस होते हैं, मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस मींस कि मायोसिन के हेड्स आ गए ना यहाँ पे, मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस पहले ही मैंने आपको इन चीजों से एक्सपोज किया है, so that you will get these things easily, because when you have prior knowledge about these terminologies involved in the sliding filament theory,
तो आपको अच्छे से समझ आएगा। दैट इज वाई आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड अर्लियरली मैंने आपको इन चीज़ों से एक्सपोज किया है। जो मायोसिन है, मायोसिन जो है, मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस मींस मायोसिन के हेड्स है, जो एक प्रोटीन है जिसको फर्स्टली डिस्कवर किया गया मसल में, मायोसिन प्रोटीन को डिस्कवर किया गया है। मायोसिन जो है थिक फिलामेंट है। इस मायोसिन क्रॉस ब्रिज का हेड जो है रेस्ट के दौरान, देखो आई विल लेट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये वाला जो है दिस इज द मायोसिन, राइट। ये वाला जो है ये मायोसिन है, और ये वाला जो है ये मायोसिन हेड्स है, ये मायोसिन क्रॉस ब्रिज है। मायोसिन क्रॉस ब्रिज किसको बोलते हैं? हेड्स, मायोसिन हेड्स, हेड ऑफ द मायोसिन। जो हेड ऑफ द मायोसिन किसके साथ अटैच होते हैं? एक्टिन के साथ। ये हेड्स, इन हेड्स को क्या कहते हैं? मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस। रेस्ट के दौरान ये वाला ऊपर का जो ये वाला पोर्शन है दिस इज द एक्टिन, ये एक्टिन है। और इन एक्टिन, इस एक्टिन में ये वाली ये चीजें जो है, ये मैं गोल गोल जैसे बना, सर्कल जैसे बना रहा हूं, दीज आर कॉल्ड द, ये साइटस है, ये एक्टिन है, पूरा एक्टिन है। एक्टिन में क्या क्या आते हैं? एक्टिन में क्या क्या आते हैं? ट्रोपोनिन एंड द ट्रोपोमायोसिन, और कैल्शियम भी आता है इसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व है। ये एक्टिन है, राइट। अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंगली रेस्टिंग फेज में जब मसल रेस्ट पे होती है, तो रेस्ट पे जब रेस्ट कंडीशन में मसल होती है, जो मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस है, मींस कि मायोसिन के हेड्स जो है, ये वाली क्रॉस ब्रिजेस, दे एक्सटेंड टुवर्ड्स द एक्टिन। ये एक्सटेंड होते हैं एक्टिन फिलामेंट की ओर। जैसे यहाँ पे ये एक्सटेंड हुए ना, ये फैल गए ना एक्टिन की ओर फैल गए, बट डू नॉट फॉर्म ए बॉन्ड विद द एक्टिन फिलामेंट। लेकिन एक्टिन फिलामेंट के साथ इन्होंने बॉन्ड नहीं फॉर्म किया है। देखो दूरी है यहाँ पे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, राइट। ये मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस है। ड्यूरिंग रेस्ट के दौरान ये मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस, हेड्स ऑफ द मायोसिन, दे एक्सटेंड टुवर्ड्स द एक्टिन फिलामेंट। ये वाला एक्टिन है, ये मायोसिन है, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है। इस एक्टिन में इट इंक्लूड्स बोथ एक्टिन मॉलिक्यूल्स, ट्रोपोनिन एंड द ट्रोपोमायोसिन। ड्यूरिंग रेस्ट myosin cross bridges extend towards actin filament, but they do not form bond with the actin filament. Here the question arises, why myosin cross bridges do not form bond with the actin filament? Why it not binds itself to the actin filament? Why? What is the reason behind this process? The reason behind this process is that कि जो रेस्ट के दौरान, ड्यूरिंग रेस्ट, बिकॉज रेस्ट के दौरान we see the uncharged ATP cross bridges. We see uncharged ATP cross bridges, because at rest we see uncharged, there we see the uncharged ATP cross bridges. वहां पे हमें uncharged ATP cross bridge complex देखने को मिलता है। वहां पे ATP चार्जड नहीं है। अगर ATP चार्जड होता तब ये बॉन्ड बनाता एक्टिन के साथ। मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस बॉन्ड बनाते हैं एक्टिन के साथ, क्योंकि मायोसिन क्रॉस ब्रिज ने वो तो एक्सटेंड हुआ एक्टिन की ओर, लेकिन बॉन्ड नहीं बना पाया। वहां पे फासला नजर आ रहा है। There is a gap, and the reason behind this detachment is that there we see the uncharged ATP cross bridge complex. ATP की जो चार्ज है वो अनचार्जड है, वो चार्जड नहीं है। अगर वो चार्जड होता तो बॉन्ड बनता वहां पे, और अनचार्जड एटीपी क्रॉस ब्रिज की वजह से वहां पे क्या होता है, देखो वीसी के सर्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में कैल्शियम स्टोर होता है, राइट। जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सर्कोमियर में होता है,
जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये नेटवर्किंग सिस्टम होता है जिसमें कैल्शियम होता है, ये एक फ्लूइड, जिसमें फ्लूइड होते हैं, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, दे आर रिक्वायर्ड फॉर दे प्रोड्यूस कंट्रैक्शन, मस्कुलर कंट्रैक्शन जो प्रोड्यूस करने के लिए जो चीजें चाहिए वो इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और इस अनचार्जड एटीपी की वजह से कैल्शियम भी वहां नजर नहीं आ रहा है। अगर चार्जड होता तो कैल्शियम वहां पे रिलीज होता है, लेकिन रेस्ट के दौरान यहां पे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द कैल्शियम आयन्स, दीज कैल्शियम आयन्स आर स्टोर्ड इन द सार्कोप्लाज्म आउटर वेसिकल्स ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सार्कोप्लाज्मिक का आउटर वेसिकल है उसमें कैल्शियम स्टोर होता है। जब यहां से एटीपी, चार्जड एटीपी आ जाता तो वो रिलीज हो जाता वहां पे, लेकिन रेस्ट के दौरान वहां पे जब अनचार्जड एटीपी ही था तो कैल्शियम वहां पे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द कैल्शियम के बगैर कंट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी, बॉन्ड तो नहीं बनेगा। तो एब्सेंस की वजह से, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द कैल्शियम आयन्स, दिस कैल्शियम आयन्स आर द स्टोर्ड इन द आउटर वेसिकल्स ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट हैपेंस देयर, जो ट्रोपोनिन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट का ट्रोपोनिन जो है, ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन इज द एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट का मॉलिक्यूल है जो एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का बना हुआ होता है। और जब कैल्शियम वहां पे नहीं है तो ट्रोपोनिन जो है, ट्रोपोनिन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, इट ब्लॉक्स, इट इनहिबिट्स, ये इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट्स द बॉन्ड ऑफ एक्टिन विद द मायोसिन। यही ट्रोपोनिन, एक्टिन का ट्रोपोनिन जो है ये ब्लॉक करता है, ये इनहिबिट करता है, ये रोकता है बॉन्ड, ये इस बॉन्ड को रोकता है। एक्टिन एंड मायोसिन के दरमियान जो बॉन्ड बन जाता ये इस बॉन्ड को रोकता है। ये ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोमायोसिन है, ये एक्टिन है, पूरा पूरा एक्टिन है, इसमें ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है। इस कैल्शियम की एब्सेंस की वजह से, कैल्शियम की एब्सेंस की वजह क्या है? अनचार्जड एटीपी क्रॉस ब्रिज कॉम्प्लेक्स है। और एटीपी जो ट्रोपोनिन है एक्टिन फिलामेंट का ट्रोपोनिन जो है इट इनहिबिट्स द बिंडिंग ऑफ एक्टिन विद द मायोसिन, एक्टिन के साथ मायोसिन का बॉन्ड नहीं बनने देता है, ये इट इनहिबिट्स, ये रोकता है, ये ब्लॉक करता है इस चीज को, बिकॉज देयर इज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कैल्शियम। व्हाई देयर इज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कैल्शियम? बिकॉज देयर इज द अनचार्ज्ड एटीपी कॉम्प्लेक्स क्रॉस ब्रिज, दैट इज व्हाई द टेंशन इज नॉट डेवलप्ड इन द मसल में टेंशन डेवलप नहीं हुआ है। तो दिस process is said to the resting phase. This is the resting phase with respect to the sliding filament theory in response to the muscular contraction. Resting phase के बाद second phase, that is the coupling phase or the excitation phase. Second phase है। In this phase क्या होता है? जो neuro impulse जब पहुंचता है ना, when neuro impulse reaches to the neuromuscular junction, जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की ओर नेरो इम्पल्स पहुंच जाता है थ्रू मोटर न्यूरॉन के थ्रू, जब नेरो इम्पल्स जो है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू नेरो इम्पल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे एसिटोकोलिन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिलीज होता है वहां पे, राइट? ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, ये मायोसिन के हेड्स हैं। यहां से जब नेरो इम्पल्स आया, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो नेरो इम्पल्स लाता है थ्रू द मोटर नेरो के थ्रू, ये एक्सॉन टर्मिनल्स है, इसके नेरो इम्पल्स के एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ये मसल के साथ कम्युनिकेट होता है। दिस गैप बिटवीन द न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर, दिस गैप इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे दो किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये दो किस्म के हैं, एक है एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और दूसरे हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ये एक्साइट करते हैं, एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं। जब ये रिलीज होते हैं ये इम्पल्स को स्प्रेड करने में हेल्प करता है।
एंड इम्पल्स जो है नर्व इम्पल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है, स्प्रेड करने में अक्रॉस द मसल फाइबर, वो स्प्रेड करने में हेल्प करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो है एसिटोकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एस्पेरेटिक एसिड, ग्लूमेटिक एसिड, डोपामाइन। दीज आर द एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इम्पल्स को रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं, उसमें है गामा है, शायद मे बी गामा और ग्लाइसिन, यस राइट, गामा एंड ग्लाइसिन, दीज आर द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्लॉक करते हैं, जो इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं नर्व इम्पल्स को। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है जब कपलिंग फेज में विद रेस्पेक्ट टू द मस्कुलर कंट्रैक्शन, इन द कपलिंग फेज, जब नर्व इम्पल्स रीचेस टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जब ये वाला नर्व इम्पल्स यहाँ से आया, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचा, ये मसल है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक जब ये पहुंचा थ्रू द ये नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन के थ्रू पहुंचता है। तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, excitatory neurotransmitters, which kind of neurotransmitters? excitatory neurotransmitters। जो excitatory neurotransmitter जो है, ये excitatory neurotransmitters में एक neurotransmitter है, that is the acetylcholine। ये acetylcholine यहाँ पे रिलीज होता है, this acetylcholine is released when the nerve impulse reaches through the when nerve impulse reaches to the muscular junction through motor neuron, there is the neurotransmitter, excitatory neurotransmitter called the acetylcholine। this acetylcholine is released, ये रिलीज होता है। जब ये रिलीज होता है, it attaches with the nerve impulse। ये रिलीज होने के बाद जब ये रिलीज होता है, ये acetylcholine क्या है? this is the substance, ये substance है। जब ये रिलीज होता है तो ये किसके साथ जुड़ जाता है? ये नर्व इम्पल्स के साथ जुड़ जाता है। इट अटैचेस टू द नर्व इम्पल्स। व्हेन इट अटैचेस टू द नर्व इम्पल्स, व्हाट हैपेंस देयर? दिस नर्व इम्पल्स स्प्रेड्स क्विकली। ये नर्व इम्पल्स को क्विकली स्प्रेड करता है अक्रॉस द मसल फाइबर। पूरे मसल फाइबर में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इस नर्व इम्पल्स के साथ जुड़ के इस नर्व इम्पल्स को क्विकली स्प्रेड करता है अक्रॉस द मसल फाइबर। पूरे मसल फाइबर में ये क्या करता है? फैल जाता है, जल्दी जल्दी फैल जाता है थ्रू द टी ट्यूबुलस, ट्रांसवर्स ट्यूबुलस के थ्रू ये क्या होता है? ये जुड़ जाता है, ये इस मसल फाइबर के अक्रॉस पूरे मसल फाइबर में स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड होने के बाद इसी स्प्रेड होते होते ऑन द रूट रास्ते में ही जो ये फैल जाता है ना न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से, ये नर्व इम्पल्स क्विकली फैल गया मसल फाइबर में ट्रांसवर्स ट्यूबुलस के थ्रू, टी ट्यूबुलस के थ्रू। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये नर्व इम्पल्स जो है जब एसिटोकोलिन रिलीज हुआ तो ये जल्दी मसल फाइबर में फैल गया टी ट्यूबुलस के थ्रू। तो ऑन द रूट, इसी रास्ते में ही क्या होता है? जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्टोर होता है, आउटर वेसिकल्स ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर होता है। ये कैल्शियम को रिलीज करता है वहां पे रास्ते में ही। दिस on the route of the nerve impulse, this nerve impulse spreads quickly when the acetylcholine excitatory neurotransmitter called the acetylcholine attaches with the nerve impulse. This spreads quickly across the muscle fiber through the T tubulus, and on the route this helps calcium. This calcium is stored in the sarcoplasmic reticulum, outer vesicle of the sarcoplasmic reticulum, and this helps calcium to release. When the calcium releases, जब calcium release होता है, जब ये कैल्शियम रिलीज होता है, दिस कैल्शियम इमीडिएटली अटैचेस विद द ट्रोपोनिन। एक्टिन का ट्रोपोनिन जो होता है, एक्टिन मॉलिक्यूल का ट्रोपोनिन जो होता है, ये इमीडिएटली ये कैल्शियम एक्टिन के साथ जुड़ जाता है। ये यहाँ पे एक्टिन के साथ जुड़ जाता है, राइट? ये एक्टिन के साथ जुड़ जाता है ऐसे। ये एक्टिन के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे ये एक्टिव साइट्स हैं, ये साइट्स हैं इसमें। यहाँ पे ये कैल्शियम जब रिलीज हुआ, ये कैल्शियम है, ये रिलीज जब हुआ, यहां इसी कैल्शियम के पास में ही ट्रोपोनिन है। ये कैल्शियम जब रिलीज हुआ, ये ट्रोपोनिन के साथ जुड़ गया। जब ये ट्रोपोनिन के साथ जुड़ गया, व्हाट हैपेंस देयर? ये जो एक्टिव साइट्स है यहाँ पे, एक्टिन पे जो एक्टिव साइट्स है, ये एक्टिन पे एक्टोमायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन होते हैं। इन ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन पे एक्टिव साइट्स हैं। जो एक्टिव साइट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, जब वो ऑन होते हैं तो वो कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है?
कपलिंग में ये एक्टिव साइट्स टर्न ऑन हो जाते हैं, ये ऑन होने लगते हैं। व्हाई इट टर्न्स ऑन? बिकॉज ड्यू टू व्हेन द कैल्शियम इज रिलीज, दिस कैल्शियम इमीडिएटली अटैचेस विद द ट्रोपोनिन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन के साथ ये जुड़ जाता है। जब ये एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन के साथ जुड़ जाता है, दिस टर्निंग ऑन एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट जो एक्टिन पे, जो एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट पे एक्टिव साइट्स होते हैं, वो एक्टिव साइट्स ऑन होने लगते हैं। दे बिकम्स ऑन, दे टर्निंग ऑन, देयर हैज सीन द टर्निंग ऑन द एक्टिव साइट्स। ये टर्निंग ऑन एक्टिव साइट्स जो होते हैं, ये टर्निंग ऑन एक्टिव साइट्स हेल्प करते हैं। दिस टर्निंग ऑन ऑफ द एक्टिव साइट्स, दिस हेल्प्स इन द इंटरेक्शन ऑफ द एक्टिन एंड द मायोसिन। मायोसिन एंड द एक्टिन के साथ ये आपस में इनकी इंटरेक्शन होती है। ये इंटरेक्शन कब पॉसिबल है? जब ये एक्टिव साइट्स एक्टिन पे जब एक्टिव साइट्स जो है ये खुल जाते हैं। ये कब खुल जाते हैं? जब कैल्शियम रिलीज होता है। कैल्शियम कब रिलीज होता है? जब नर्व इम्पल्स आ जाता है। नर्व इम्पल्स को स्प्रेड करने में कौन मदद करता है? जब एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड द एसिटिकोलिन इसके साथ जुड़ रिलीज होता है। तो वो कैल्शियम पे रास्ते में ही वो कैल्शियम को वहां से रिलीज करता है। कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ जुड़ जाता है। इस ट्रोपोनिन के साथ जुड़ने से क्या होता है? एक्टिव साइट जो एक्टिन फिलामेंट पे है वो टर्न ऑन होते हैं। जब वो टर्न ऑन होते हैं, टर्न ऑन होने का मतलब है दिस एक्टिव साइट्स टर्निंग ऑन एक्टिव साइट्स हेल्प अस इन द इंटरेक्शन ऑफ द एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के दरमियान अब इंटरेक्शन होने लगी। बॉन्ड, पूरा बॉन्ड नहीं बना लेकिन इंटरेक्शन होने लगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्साइटेशन। अब एक्साइट होने लगी है मसल। अभी कंट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं हुई है, अभी कपलिंग ही हुई, अभी एक्साइटेशन ही हुई, अभी एक्साइटेशन ही हुई। दिस प्रोसेस और साइमल्टेनियसली वहां पे रेस्टिंग में अनचार्जड एटीपी था, और इसके साथ साथ में ही जब ये इंटरेक्शन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट एक्टिव साइट्स की वजह से जब इनकी इंटरेक्शन हुई, साइमल्टेनियसली द एटीपी अनचार्जड एटीपी क्रॉस ब्रिज बिकम्स द चार्जड एटीपी क्रॉस ब्रिज कॉम्प्लेक्स। ये तब्दील होता है। रेस्टिंग में अनचार्जड एटीपी क्रॉस ब्रिज कॉम्प्लेक्स था, अब यहां पे ही जब इनकी इंटरेक्शन हुई, एटीपी कॉम्प्लेक्स क्रॉस ब्रिज अनचार्जड जो था ये अब चार्जड बन गया। This mechanism, this process is said to be the excitation. This mechanism, this process is said to be the coupling in relation to the muscular contraction involved in the sliding filament theory. अब तीसरा जो फेज है, दैट इज द कंट्रैक्शन फेज। कंट्रैक्शन फेज जो है वो तीसरा फेज है। कंट्रैक्शन फेज में क्या होता है? तीसरा फेज है कंट्रैक्शन फेज। कंट्रैक्शन फेज में क्या होता है? अब जब एक्साइटेशन हुई, अब एटीपी अनचार्जड वो चार्जड हो गया, एक्टिव साइट्स भी खुल गए, इंटरेक्शन होने लगी। अब जो कपलिंग में इंटरेक्शन होने लगी, अब इनका बॉन्ड बनने लगा। किनका? एक्टिन एंड मायोसिन का। कंट्रैक्शन में द एक्टोमायोसिन, एक्टोमायोसिन मीन्स जब एक्टिन एंड मायोसिन मिलते हैं तो ये एक complex form of protein produce करते हैं। they form a, when they attach to each other, they form a complex kind of protein. that complex kind of protein classically called the actomyosin. उसको classically actomyosin कहते हैं। जब कंट्रैक्ट कपलिंग में क्या हुआ? इनकी इंटरेक्शन हुई। जब इंटरेक्शन हुई तो एक्टोमायोसिन जो है इन्होंने एक कंट्रैक्शन जब ये सॉरी जब इंटरेक्शन जब हुई, सॉरी कंट्रैक्शन इंटरेक्शन जब हुई कपलिंग में, कपलिंग फेज में जब इंटरेक्शन हुई एक्टिव साइट्स की टर्निंग ऑन होने की वजह से जब इंटरेक्शन हुई तो एक्टोमायोसिन बन गया। ड्यू टू इन द कंट्रैक्शन फेज, ड्यू टू द एक्टिव फॉर्मेशन ऑफ द एक्टोमायोसिन, जब एक्टोमायोसिन फॉर्म हुआ एक क्लासिकल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन गए, उसको एक्टोमायोसिन बोलते हैं। जब एक्टिव मायोसिन बन गया, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव मायोसिन, दिस फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ द एक्टोमायोसिन इन द कंट्रैक्शन फेज, इट एक्टिवेट्स एन एंजाइम। ये एक्टिवेट एक एंजाइम करता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एक्टोमायोसिन in the contraction phase, it activates enzyme. This enzyme is called myosin ATPase.
मायोसिन एटीपीज को एक्टिवेट करता है, राइट। जब मायोसिन एटीपी एक्टिवेट करता है, जब ये मायोसिन एटीपीज एक्टिवेट होता है, तो इट दिस एंजाइम, ये एंजाइम जो है इट ब्रेक्स एटीपी इनटू एडीपी। ये एंजाइम एटीपी ब्रेक डाउन होता है एडीपी में, ठीक। ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम myosin ATP, this help us in breaking down the ATP into ADP। ATP का हाइड्रोलिसिस होता है, ब्रेक डाउन होता है ATP में। जब ATP ADP में ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। जब लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, ये एनर्जी किसके साथ जुड़ता है? एक्टिन के साथ जुड़ता है। जिस एक्टिन के साथ ये एनर्जी जुड़ जाता है, जिस एक्टिन के साथ ये जुड़ जाता है, वो एक्टिन, दैट एक्टिन स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर मायोसिन। वो एक्टिन स्लाइड होने लगता है मायोसिन पे। ये ना, ये एक्टिन स्लाइड होने लगा, राइट। ये स्लाइड होने लगा। जब ये स्लाइड होने लगा, जब मायोसिन एटीपीज इस एंजाइम की वजह से एटीपी एडीपी में ब्रेक डाउन हुआ, तो एटीपी एडीपी में ब्रेक डाउन होने का क्या मतलब है? वहां पे लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जब लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो जिस एक्टिन के साथ ये एनर्जी अटैच होती है, वो एक्टिन स्लाइड होता है। इट हेल्प अस टू स्टार्ट द स्लाइड, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर या ओवरलैप ओवर मायोसिन फिलामेंट। ये मायोसिन फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, स्लाइड हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो एच जोन है, यहाँ पे जो एच जोन होता है वो डिसअपियर होता है, और जो ये होते हैं वर्टिकली लाइनस, ज़ेड लाइनस जो होते हैं, ये भी स्मॉलर होने लगते हैं। एच जोन डिसअपियर होने लगता है, और ज़ेड लाइनस इस पास आ गए। अब तक यहाँ इतने मेरलैक्स में दूर थे, अब ये पास आने लगे। और जो एक्टिन है, ये स्लाइड करता है मायोसिन पे, but the length of these filaments does not change. What happens there? The muscle shortens. muscle जो है वो shorten होता है। A band जो है, मायोसिन जो है उसकी लेंथ कांस्टेंट रहती है, लेकिन as its original length, लेकिन जो I band जो है, I band shorten होता है, और H zone disappear होता है contraction phase में, right? अब fourth phase, that is the recharging phase। इन्हीं phases को इंटीग्रेट करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। Fourth phase is the recharging phase। कंट्रैक्शन में ये स्लाइड हुआ, लेंथ चेंज नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, इनकी ए बैंड की लेंथ कांस्टेंट रही, एच जोन डिसअपियर हुआ, आई बैंड शॉर्टन हुआ। ये कंट्रैक्शन में हुआ। अब रिचार्जिंग फेज में जो फर्स्ट सेटअप इन्वॉल्व इन द रिचार्जिंग फेज, पहला सेटअप रिचार्जिंग में, कंट्रैक्शन के बाद रिचार्ज तो होना है ना। अब पहले रेस्ट में थे, रेस्टिंग के बाद कपलिंग, एक्साइटेशन जरूरी है, एक्साइट होना है ना मसल को, एक्साइटिंग के बाद कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। अब कंट्रैक्शन के बाद रिचार्ज होना है ना, तो अब दोबारा से कंट्रैक्शन होना है, ठीक है ना। अब दोबारा से कंट्रैक्शन होना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एटीपी का रोल ज्यादा रहेगा जब रिचार्जिंग पे आ जाएगा, ठीक। अब रिचार्जिंग के बाद अब मसल को रिलैक्स भी करना है, वो लास्ट फेज है। रिचार्जिंग फेज में द फर्स्ट सेटअप इन्वॉल्व इन द रिचार्जिंग फेज इज द ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, ओल्ड बॉन्ड जो बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के दरमियान जो ओल्ड बॉन्ड था कंट्रैक्शन फेज में, कंट्रैक्शन हुई ना, वो स्लाइड हुई, ये आपस में जुड़ गए, कैल्शियम भी रिलीज हुआ, राइट। तो ये भी जुड़ गए आपस में, एक्टोसाइट्स भी ऑन हो गए। ये रिचार्जिंग फेज में फर्स्ट सेटअप की एनवायरनमेंट क्या है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड बिटवीन द एक्टिन एंड द मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस।
मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस एंड एक्टिन क्रॉस ब्रिजेस के दरमियान जो ओल्ड बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। जो रिचार्जिंग फेज में न्यू एटीपी मॉलिक्यूल इज रिलोडेड, न्यू एटीपी मॉलिक्यूल इज रिलोडेड। नया मॉलिक्यूल एटीपी का रिलोड होता है और ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड बिटवीन द एक्टिन एंड द मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस, राइट। अब यहां पे क्या होता है, न्यू साइट्स आर अवेलेबल फॉर रिसाइकलिंग। नए नए साइट्स जो वहां पे एक्टिन पे जो नए नए साइट्स थे एक्टोमायोसिन के, यहाँ पे ये वाले नए साइट्स जो है, न्यू साइट्स आर मेड अवेलेबल फॉर रिसाइकलिंग, अब रिसाइकलिंग के लिए अवेलेबल हो गए। और न्यू बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड जो ब्रेक हुआ रिचार्जिंग में, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ, नए साइट्स आर मेड अवेलेबल फॉर रिसाइकलिंग एंड न्यू बाय how they old bond breaks by reloading the fresh molecule of ATP। जो fresh molecule of ATP reload होता है ना, उस fresh molecule of ATP की वजह से क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है और न्यू मॉलिक्यूल न्यू फ्रेश मॉलिक्यूल का एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो रिलोड होता है और न्यू साइट्स जो है दे आर मेड अवेलेबल फॉर रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है यहाँ पे इस फेज में। अब लास्ट फेज दैट इज द रिलैक्सेशन फेज। कपलिंग के बाद कंट्रैक्शन, रेस्ट के बाद कपलिंग, एक्साइटेशन के बाद एक्साइटेशन के बाद कंट्रैक्शन के बाद रिचार्जिंग फेज दैट इज द लास्ट फेज, दैट इज द रिलैक्सेशन फेज। और रिलैक्सेशन की फेज के में क्या आता है, जब नर्व इम्पल्स सीज होता है, जब नर्व इम्पल्स मसल फाइबर में खत्म होता है, फेड अवे होता है, when the nerve impulse is faded away, जब नर्व इम्पल्स सीज होती है, ठीक, कैल्शियम आयन जो अब तक थे ट्रोपोनिन में, एक्टिन फिलामेंट ऑफ ट्रोपोनिन में, जो ट्रोपोमायोसिन या एक्टिन में या ट्रोपोनिन में जो ये थे कैल्शियम आयन्स थे, उन कैल्शियम आयन्स, द कैल्शियम आयन्स इज टेकन बैक फ्रॉम ट्रोपोनिन से उनको वापस लिया जाता है टू द आउटर वेसिकल्स ऑफ द सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो दोबारा से सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर वेसिकल में उनको दोबारा स्टोर किया जाता है जब नर्व इम्पल्स फेड आई होती है, जब नर्व इम्पल्स सीज होती है इन द रिलैक्सेशन फेज। जब रिमूव ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द ट्रोपोनिन to the outer vesicles of the sarcoplasmic reticulum, due to this removal of the calcium, it helps us to turn off the active sites। जो एक्टिन फिलामेंट पे एक्टिव साइट्स थे अब तक वो टर्न ऑफ हो गए, एक्साइटेशन में वो टर्न ऑन होने लगे और कंट्रैक्शन में उनको टर्न ऑन की वजह से बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे कैल्शियम जो उनको उसको वापस लिया गया, ये एक्टिव साइट्स एक्टिन ट्रोपोनिन एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन पे जो एक्टिव साइट्स थे, इन एक्टिव साइट्स को बंद किया गया ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द कैल्शियम आयन्स। ये एक्टिव साइट्स टर्न ऑफ हो गए, देयर बाय नो फॉर्मिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द क्रॉस ब्रिजेस के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बना। अब बॉन्ड जो था, अब इंटरेक्शन जो थी वो खत्म हुआ, अब रिश्ता खत्म हुआ इनमें, एक्टिन एंड मायोसिन के दरमियान अब रिश्ता खत्म हुआ, राइट। और रिश्ता कैसे खत्म हुआ, जब रिमूवल ऑफ द कैल्शियम आयन्स, the removal of the calcium ions from the troponin of the actin filament to the outer vesicles of the sarcoplasmic reticulum, thereby no forming of bond between the cross bridges। अब रिश्ता खत्म हुआ इन दरमियान। इस और क्या हुआ इस रिचार्जिंग रिलैक्सेशन फेज में, द एक्टिविटी ऑफ द एटीपी इज स्टॉप्ड। एटीपी की हाइड्रोलिसिस की एक्टिविटी जो थी, ब्रेकडाउन की एक्टिविटी जो थी, एटीपी एडीपी में ब्रेकडाउन होता था ना, अब ये एटीपी एडीपी में ब्रेकडाउन नहीं होता। अब ब्रेकडाउन एटीपी की एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो गई। नो मोर एटीपी इज ब्रेकिंग डाउन। अब एटीपी ब्रेकडाउन नहीं होता है, जैसे कि हमें कपलिंग, जैसे कि हमें इस फेज में देखने को मिला है, इससे पहले वाले फेज में देखने को मिला है कि एटीपी एडीपी में ब्रेकडाउन होता है। अब यहाँ पे एटीपी की एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हुआ है। अब नो मोर एटीपी इज ब्रोकन डाउन। अब एटीपी नहीं ब्रेक होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होती है एटीपी की। इससे क्या होता है, द मसल फिलामेंटस रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब मसल फिलामेंटस जो है वो अपनी जगह पे ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न चले जाते हैं, जहां वो रेस्टिंग फेज में थे वहीं पहुंच जाते हैं और एज अ रिजल्ट मसल रिलैक्सेशन ऑकर्स देयर, वहां पे मसल रिलैक्सेशन
देखने को मिलती है। तो these were the phases which we see throughout this sliding filament model. So these were the phases. In these phases we see the mechanical, biochemical and the physiological processes with respect to the muscular contraction involved in the sliding filament theory. I hope you might understood the whole sliding filament theory very well, very keenly, and यहाँ पे आपके doubts नहीं रहे होंगे with respect to this sliding filament theory. Hope कि आपको समझ में आया होगा. Thank you very best, all the very best.